good morning students. I am Rajni Gehlot, PGT English from Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to continue my chapter on the face of it, which has been taken from the book Vistas of class 12th. So now I'll tell you what more advices are given by Mr. Lamb to Derry. Mr. Lamb also tells Derry that the world and the people living in the world will gradually move on some other new thing or person to critique or notice. Means when Derry told him that all the people who met to him, they always criticize him, they always stare at his face and comments on him and talk about him. Then Mr. Lamb convinced him. He told him that gradually, slowly, धीरे धीरे जो लोग हैं, they will be used to see his face in his original way, means his burnt face, and they will start to look on the other things. कि वो धीरे धीरे जो है उस चीज़ के उसके उस जले हुए चेहरे के यूज टू हो जाएंगे और वो दूसरी चीज़ों को देखने लगेंगे रेदर देन टू क्रिटिसाइज हिम और टू नोटिस हिज फेस. कि स्टार्टिंग में तो कोई भी है, चाहे अच्छी चीज़ है चाहे बुरी चीज़ है, हर व्यक्ति जो है एकदम से नोटिस करता है, पर फिर वो उसके लिए उसका आदी हो जाता है, यूज्ड हो जाता है कि ये तो नॉर्मल हो चुका है, दैट हैज़ बिकम नॉर्मल, and they never talk to about that thing. So the same way they will also be used to of your face. He should not waste away his life by pondering on other people's opinions of him, and he also tried to convince him that he should not waste his time to notice the things of those people who stare at him, who talks about him. He should pay attention on the other side of his life. He should be optimistic. He should saw the good things of this world, and for this he gives him an example of a person. वो उसे एक व्यक्ति का एग्जाम्पल देते हैं. मिस्टर लैम कहते हैं डायरी से, he told him a story of a man who stayed inside his house because he feared death by an accident. एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस बात से डरता था कि किसी एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो सकती है, और इस डर से वो हमेशा घर के अंदर रहता था. उसे लगता था कि अगर वो घर से बाहर गया तो उसका पैर जो है वो केले के छिलके पर पड़ जाएगा और वो फिसल जाएगा, या कोई गाड़ी उसको कुचल कर चली जाएगी, या उसे किसी से लव हो जाएगा और वो लड़की उसको छोड़कर चली जाएगी, तो वो डिप्रेशन में आ जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी. इन सब चीज़ों से डरकर वो हमेशा घर के अंदर रहता था. However, in the end, he died inside his room when a painting fell over his head. लेकिन उसके बावजूद भी, though he was living in his house, a painting fell on his head when he was sitting on his bed. So the painting which was hung on upon his bed, that fall into his head, वो उसके सर पर गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है. तो सो वी कैन नॉट से दैट वी आर सेव एट होम. तो जब मौत आनी होती है तो वो कहीं भी आ सकती है, हमें उससे डर कर घर के अंदर नहीं रहना है. हाँ, हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, हमें अपनी सेफ्टी करनी चाहिए, बट ये नहीं कि डर कर हम जीना ही छोड़ दें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो इस समय पैंडमिक है कोरोना का, कोविड-19 से डर कर लोग घर के अंदर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. हम कब तक रहेंगे? अगर कुछ दिन की कोई बीमारी होती तो ऐसा हो सकता था, बट अब इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है. तो हमें प्रिकॉशन लेनी है, अपनी सेफ्टी करनी है, दूसरों को बचाना है. तो अब यहाँ पर नैरेटर मिस्टर लैम्ब कहते हैं, Thus even Derry should come out of his room of fear and embrace the outside world and its people. And he advised him that he should also come out of his loneliness, of his isolation. उसे भी अपने उस isolation से, उस एकाकीपन से बाहर आना चाहिए और उसे इस संसार को देखना चाहिए. हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. ही शुड नॉट हाइड हिमसेल्फ.
inside the house. Mr. Lamb asserted that the same fact did not make them enemies. Also, he reiterated that they were friends and that Derry is always welcome to his garden. मिस्टर लैम उनसे ये भी बताते हैं कि वो उसके एनिमी नहीं है, जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं या उसको स्टेयर करते हैं, जो उसको घूरते हैं, वो उसके एनिमी नहीं है. हर कोई व्यक्ति एनिमी नहीं होता, सभी हमारे दोस्त होते हैं. और इवन वो कहते हैं कि दैट दे वर फ्रेंड्स एंड दैट डेरी इज ऑलवेज वेलकम. एंड और उसके जो बच्चे उसके बगीचे में आते हैं, जो उसको लेमी लैम बोलते हैं, वो भी उसके एनिमी नहीं है, वो भी उसके फ्रेंड्स हैं, जो कि हमेशा उसे लेमी लैम बोलते हैं रोड पर. बट वो उसके बावजूद भी उसके बगीचे में क्रैब एप्पल्स लेने के लिए आते हैं, उससे जेली लेते हैं, जैम खाते हैं, उनके पास एंजॉय करते हैं. एंड ही ऑल्सो वेलकम टू देम. He calls Derry his friend, even thought that Derry does not reciprocate the same feelings. Derry says that he would never return to the garden, so he could not call Mr. Lamb a friend. और वो मिस्टर लैम डेरी को भी कहते हैं कि यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड. डेरी सेड दैट बट यू डोंट नो टू मी, यू ऑल्सो डोंट नो माई नेम ऑल्सो, हाउ कैन आई मे बी योर फ्रेंड. मैं आपका दोस्त कैसे हो सकता हूँ. और मिस्टर लैम ये भी कहते हैं आई नो दैट यू विल नेवर कम टू माई गार्डन आफ्टर गोइंग फ्रॉम देयर. यहाँ से जाने के बाद मैं ये जानता हूँ कि तुम कभी मेरे बगीचे में वापस नहीं आने वाली हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे दोस्त हो. Derry opens up now. There are changes in Derry, and said Derry tells Mr. Lamb that if he comes to his garden, all his other friends will get scared of his face. Derry told Mr. Lamb that if he started to come into his garden, that all other friends of Mr. Lamb will be scared to see his face and will run away from his garden. Derry कहता है कि अगर उसने मिस्टर लैम के बगीचे में आना शुरू कर दिया तो उसके जो दूसरे दोस्त हैं वो उसके चेहरे को देखकर डर कर भाग जाएंगे. और इस तरीके से मिस्टर लैम अपने दोस्तों को, पुराने दोस्तों को उसकी वजह से खो देगा. Mr. Lamb consoles him by saying that kids often call him by funny names like Lemmy Lamb but still come back to his garden. Mr. Lamb उसे ये भी कहते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हम होने के डर से उस काम को छोड़ तो नहीं देंगे कि ऐसा नेगेटिव होगा. और वो ये भी कहता है कि बच्चे मुझे लेमी लैम कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरे बगीचे में आते हैं. Terry finally expresses some optimism and hopes to have a house without curtains of his own. फाइनली उसकी व्यूज़ जो है वो चेंज हो जाते हैं. वो ऑप्टिमिस्टिकली कहता है, मतलब अब आशावादी हो जाता है और मिस्टर लैम से कहता है कि मुझे आपका बगीचा अच्छा लगता है और आपका घर भी विदाउट कर्टेन. आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव सच टाइप ऑफ हाउस ऑफ माई ओन. वो कहता है कि मेरी इच्छा है कि मेरा भी अपना ऐसा ही घर हो जैसा आपका घर. दैट मिस्टर लैम सेड दैट यू कैन think it that this is your own house. आप इसे सो अपना ही घर समझो. डैडी कहता नहीं ये मेरा घर नहीं है. And he wants to live in the light of faith and self-belief and come out of the shadows of self-doubt and fear. And he also want to come out of the fear and doubts also. वो अपने उस डर से और उसके जो अपने डाउट है उनसे बाहर आना चाहता है. मिस्टर लैम्ब की तरह वो अपनी लाइफ जीना चाहता है. However, Derry defies her injunctions and returns to Mr. Lamb's garden. He was finally free of all his inhabitants, all thanks to the encouragement and comforting words of Mr. Lamb. और इस तरीके से डेरी जो है वो अपनी पैसिमिस्ट से बाहर आता है, अपनी निराशावाद से बाहर आकर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है. और उसके लिए वो मिस्टर लैम्ब को धन्यवाद भी देता है. जब मिस्टर लैम्ब उसे कहते हैं कि तुम अगर एक बार घर चले गए तो वापस नहीं आओगे, उसे याद आता है कि उसने अपनी मदर को तो इन्फॉर्म ही नहीं किया है वो कहाँ पर है. तो मिस्टर लैम्ब उसे कहते हैं कि ठीक है आप जाओ और इन्फॉर्म करके आओ, मैं जानता हूँ कि तुम वापस नहीं लौटोगे. बट डैडी सेड दैट ही विल रिटर्न, कि वो निश्चय ही आएगा. देन ही वेंट टू हिज हाउस एंड inform his mother that where was he. But his mother
forbade him to go to Mr. Lamb's house. She had listened some rumors about him, though they are living in that village, in the same village since last 6 months, कि वो पिछले कुछ महीनों से 6 महीनों से उसी गांव में वो रह रहे थे। उसने उनकी माँ ने कुछ र्यूमर्स सुने होंगे, जब कोई व्यक्ति अकेला किसी बहुत बड़े घर में या बीची में रहता है तो गांव में अलग अलग तरीके की अफवाहें होती हैं उसके लिए, मतलब कुछ इस तरीके का कि हॉन्टेड हाउस है, समथिंग लाइक दैट। दैट्स वाई हिज मदर afraid to send him to that person, but he opposed her mother and went and returned to Mr. Lamb's house. When he went there, what happened? Danny then returns home to his mother and narrates his encounters with Mr. Lamb. She wants him to stay away from Mr. Lamb, who she thought was a dangerous person. Her mother warns him that Mr. Lamb is a dangerous person, but Danny told her that he likes the company of Mr. Lamb rather than other people, because he is the first person who uh, did not notice his burnt face, and he also not criticized to him. So however, he returns to see Mr. Lamb lying flat on the ground. The ladder had slipped from the tree and Mr. Lamb had suffered a terribly fall. He lay there unmoved, injured, for remembers the story ends with Derry breaking into melancholic tears. So when he returned to Mr. Lamb's house, because he promised to him that he will return, he as soon as he entered into the garden, he listened the sound of the cracking sound of the twig of the of a branch of the tree, and then the thumping sound of the body. जैसे ही वो बगीचे में एंटर करता है, उसे पेड़ के ब्रांच की टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और किसी भारी चीज़ के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है ये बोलते हुए कि आई हैव कम बैक मिस्टर लैम, आई हैव कम बैक, मैंने आई प्रॉमिस दैट आई विल कम, आई हैव रिटर्न, मैं वापस आ चुका हूँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। और वो जब वहाँ उस जगह पर जाता है जहाँ मिस्टर लैम गिरे हुए थे, तो वहाँ जाकर वो उनको बोलता है, लैमी लैम आई हैव कम, देखो उठो, मैं वापस आ गया हूँ। देन टू सी द डेड बॉडी ऑफ मिस्टर लैम he started to cry, and this was the melancholy end of this chapter on the face of it. Thank you student, I think the chapter have been clear to you. Have a nice day.